السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں غدار کی ڈیفینیشن، وہ بھی پوئٹری میں، شعر و شاعری کے اندر جب آپ کو غدار کی جو ڈیفینیشنز ملتی ہیں وہ پھر اور ہی الگ مزہ کرتی ہیں. اور پھر جب بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ مودی بی جے پی RSS کے اوپر یہ فل فٹ آ چکی ہیں تو اور ہی خوند کرتا ہے، مزہ کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں لتا حیا، جو کہ عمران پرتاپ گڑھی کے مقابلے کی ہندو شاعرہ ہیں. وہ مسلم شاعر ہیں، یہ ہندو شاعرہ ہیں اور اردو سے ان کو اتنا لگاؤ ہے. آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو WhatsApp پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. آخر میں پروف لے کے آؤں گا ان باتوں کا جو لتا حیا نے کی ہیں. غدار، بہت آپ لوگوں پہ غداری کا الزام لگایا جاتا ہے. میں نے بتانے کی کوشش کی غدار ہے کون. سنیے گا. دیکھ کے جس کو مذہب کی پیشانی جھک جاتی ہے، آخری مصرے پر توجہ چاہوں گی. دیکھ کے جس کو مذہب کی پیشانی جھک جاتی ہے اور دھرم کے بھی ماتھے پر کالک سی پت جاتی ہے. دیکھ کے جس کو یکجہتی کا آنچل بھی شرماتا ہے اور محبت کا پلو بھی سر سے ڈھلکا جاتا ہے. دیکھ کے جس کو مندر کی ہاں گھنٹی بھی تھراتی ہے اور اذان مسجد سے آنے والی بھی رک جاتی ہے. دیکھ دلوں میں نفرت کا جھنڈا جو کہ پھہراتا ہے، دیکھ دلوں میں نفرت کا جھنڈا جو کہ پھہراتا ہے. دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے. دیکھ کے دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، وہ کہ جس نے خود کو مالا مال بنا کر رکھا ہے اور غریبوں کا دیکھو کیا حال بنا کر رکھا ہے. دل کو جس نے اپنے قبرستان بنا کر چھوڑا ہے، جنگ کا جیسے سنسد کو میدان بنا کر چھوڑا ہے. کتنے ہی تابوت سجا کر رکھے ہیں نیتاؤں نے، گلیاں گلیوں آنگن آنگن شہروں اور چوراہوں میں. تاج بنا کرسی کا جو جنتا کے ہاتھ کٹاتا ہے، تاج بنا کرسی کا جو جنتا کے ہاتھ کٹاتا ہے. دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا. جی شکریہ. دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ سورج چاند ستارے میرے ہیں، عرش زمین موسم ساگر دریا کے دھارے میرے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوں بس میں ہی میں ہوں، ایک مجھ کو جینے کا حق ہے کیوں غیروں کو جینے دوں. دولت اور شہرت کے تختے طاؤس پر جو ناز کرے، جنگ کرے جرموں سے، جرم کرے جسموں سے کھیلے، جرموں کا آغاز کرے. جو بچوں کو بندوقوں کا پہلا سبق پڑھاتا ہے، جو بچوں کو بندوقوں کا پہلا سبق پڑھاتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے. اور دیکھیے بھاشاؤں کو لے کے جھگڑا اب تو بہت ہی چھوٹی بات ہو گئی، ابھی تو پتہ نہیں کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. پھر بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ پریم کی بولی بھی جس کو دیکھو کہ کڑوی لگتی ہے، سبھی زبانیں بری لگیں بس اپنی اچھی لگتی ہے. ہندی اردو ان دونوں بہنوں کو جو لڑواتا ہے، ایک ماں جائیں ہیں پھر بھی آپس میں انہیں بھڑاتا ہے. اور زبانوں کو بھی لے کر جنگ کرے مچلے جھگڑے، غیر زبان کو عزت دے اور اپنوں کی توہین کرے. اپنے ہی گھر کے آنگن میں جو دیوار اٹھاتا ہے، اپنے ہی گھر کے آنگن میں جو دیوار اٹھاتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے. اور آخری بند میں دیکھیے، ہم اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے. آخری بند سنیے گا. اور ہم ہی کیا کم ہیں جو ان کی باتوں میں آ جائیں، صدراہوں کو چھوڑ چلیں اور بدراہوں پر مڑ جائیں. کیوں آخر ابلیسوں کو اپنا استاد بناتے ہو، کیوں ان سے اصلاحیں لے کر خونی غزل سناتے ہو. چرخے چاہت سے جو نازل ہو تخلیق خدا کی ہے، ورنہ تو ہر گیت ہے جھوٹا اور غزل دھوکہ ہی ہے. ووٹ انہیں جو دیتا ہے اور نیتا انہیں بناتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے، دیش کے غداروں میں پہلا نام اسی کا آتا ہے. اور دو چار شعر سنا کے اجازت کہ ہم سے ثبوت مانگنا مہنگا پڑا انہیں، ہم سے ثبوت مانگنا مہنگا پڑا انہیں، کاغذ کو یوں کھنگالنا مہنگا پڑا انہیں. ہم سے ثبوت مانگنا مہنگا پڑا انہیں، کاغذ
महंगा पड़ा उन्हें, और सोए पड़े थे चैन से वो तो मजार में, सोए पड़े थे चैन से वो तो मजार में, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें। और देखिए ये शेर खास तौर से फिर मेरी बहनों की नजर कि बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें। बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें। और एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें। और बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गज़ल का हुक्म दिया था यहाँ पे किसी ने, 3-4 अशार सुना के इजाज़त सुनिए। वो गज़ल आजकल हर कोई उसके लिए बोल रहा है, बहुत पहले कही थी लेकिन हुक्म जाती है। उस गज़ल के 3-4 शेर सुनाए, सुनिएगा। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उन्होंने बोल दिया हम वापस नहीं लेंगे कानून, आप मरते हैं तो मर जाइए। उनसे हम तो कहते हैं कि आप इंस्टा क्यों छोड़ रहे हो, कुर्सी छोड़ दो ना, वो सबसे अच्छी बात है। आप इंस्टा क्यों छोड़े, कुर्सी छोड़ दीजिए, वो सबसे अच्छी बात है। सुनिएगा। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो। अब सुनिएगा। वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। फर्जी हैं जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां। आपको ये बताऊं, मेरा नाम वैसे भी कवि सम्मेलनों से बहुत पत्ता साफ करवाया जाता था, और अभी तो मेरा नाम कटवाया जाता है लास्ट मोमेंट पे। कवि सम्मेलन लखनऊ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कवि सम्मेलनों से मेरा नाम, क्योंकि हमारे मंच पे कुछ भक्त कवि भी बैठे हैं और कुछ चमचे कवि भी बैठे हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं मोदी मोदी, और बस कश्मीर कश्मीर, और वो जय जयकार के नारे लगा के वही चलते हैं। तो वो जो चमचे भक्त कवि हैं ये, क्योंकि बात जाएगी आप सुनिएगा, उनकी कविता वही चलती है सिर्फ मोदी मोदी के नारों से। और अगर आप जी युद्ध देखते हो जो टीवी पे आता है, तो जब मैं गई तो जब मैंने बोला उसमें तो मेरा काफ़ी कुछ काट दिया गया था। उसके बाद 2 मरतबा मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि खिलाफ बोलिए, तो मैंने कहा क्यों खिलाफ बोलूं, तो मैंने मना किया। बहरहाल नाम कटवाए जाने लगा। तो मैं एक बात उसमें कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो कहती हूँ वो कहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, बात जानते हैं मेरे हम नवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, आप लोगों की मोहब्बतों के सामने कुछ भी नहीं है। तो सुनिएगा। फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयाँ,
की डिग्रियां फर्जी दवाइयां, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो। बगैर डरते हुए कह रही हूँ कि बीवी माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा। हैरान हूँ कि किससे हया मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी लता हया की पोएट्री, और वाकई उसी अंदाज में जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब बात करते हैं, और कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो दिल में घर जाती हैं। वो सच्चाइयाँ यहाँ पर बीजेपी के बारे में उन्होंने कही हैं, और डेफिनेशन जो थी वो थी गद्दार किसे कहा जाता है। तो जवाब ये था डेफिनेशन का कि जिसे देख के अज़ां रुक जाती है, जिसे देख के मंदिर की घंटी रुक जाती है, मजहब की आंख शर्माती है। बीजेपी ने सियासत को तरक्की की बजाय मजहबी शनाख्त की जंग बना दिया है। ट्रंप ने जो है वो ट्रंप को ही अमेरिका समझ के अंदाज़े बयां शुरू किया और टैरिफ लगाना शुरू किया, तो बेड़ा गर्क हो गया यूएस का। हुआ पड़ा है, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। इसी तरह बीजेपी ने अवाम का बेड़ा गर्क करके ये समझे कि शायद हम मजहब की आड़ में बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अब लोग निकलना शुरू हो गए। बड़ा थमा है बीजेपी, बड़ा थमा है, जहां अवाम के मसाइल से ज़्यादा मंदिर और मस्जिद पर बहस की जाती है। रात भी एक मैं डिबेट को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मंदिर गिराने से या मस्जिद गिराने से या अजान बंद होने से हमें नौकरी मिलती है इंडियंस को, हमारा रोजगार अच्छा होता है, तो जरूर बंद करो। और इस पे जो तालियां बजी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं है, राम मंदिर बनाने से भी नहीं हुआ, अजानों पे पाबंदी लगाने, स्पीकर पे पाबंदी लगाने से भी कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी गलती है। मोदी हुकूमत ने इख्तलाफ रखने वाले हर शख्स को या तो गद्दार कहा या मुल्क दुश्मन। हालांकि जमहूरियत में सवाल करना जुर्म नहीं बल्कि हक होता है। एहतजाज भी करने पड़ते हैं। तालीम, सेहत, रोजगार की बजाय जज्बाती नारे बेचे गए, और ताकि अवाम असल मसाइल भूल कर सिर्फ जज्बात में वोट दे दें। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मिसाल के तौर पर योगी आदित्यनाथ आके बोलता है, तकरीर करता है, हम हिजाब करने वालों को तहस नहस कर देंगे, ये दहशतगर्द हैं, बुरके में दहशतगर्दी करते हैं। वो जो नौकरी मिलनी थी सुनने वालों को, वो गई, बढ़ गई। वो जो महंगाई पे कंट्रोल होना था वो बढ़ गया, खत्म। ये चीज हम इंडियंस से गुजारिश करेंगे अब कि हम अपने मुसलमानों से दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप लोग थोड़ा सा आंखें तो खोलो यार, क्या हो रहा है आपके साथ। मैं कहता हूं कि यार चाइना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कैसे बेहतरीन बन गया, इंडिया की सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट पीपल्स हैं, ये पॉपुलेशन है, तो इसका क्या बनेगा। ये तो रोज बरोज खड्डे में जा रहे हैं, खड्डे में। ओहो, मसाइल हैं। मीडिया की आज़ादी कम हो जा रही है। ज़्यादातर चैलेंजेस हुकूमत की तारीफ ना करने पर दबाव या पाबंदी का शिकार होते हैं। अब मीडिया वाले मजबूर हो गए, वो कह रहे हैं भाईजान आप सच बोलने दो हमें, हम तुम्हारी पाबंदियां नहीं आगे भुगत सकते, और हमें आपकी पाबंदियों से सच बोलने से रुकावटें हो रही हैं। बीजेपी के बयानात में सबका साथ ज़रूर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सबका साथ सिर्फ नारा है, अमल नहीं है। मुसलमान और अक़लियतों को बार बार वफादारी का सबूत देना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं होते। तारीख की किताबों में तब्दीलियाँ करके माजी को अपनी सियासत के मुताबिक दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि नई नस्ल को सिर्फ एक ही नज़रिया सिखाया जाए। किसी भी आदमी को हिजाब या मस्जिद, किसी औरत को हिजाब या मस्जिद के मसले को फ़ौरन कौमी सलामती से जोड़ दिया जाता है, जबकि असल मकसद सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करना है। ये गद्दार की डेफिनेशंस चल रही हैं। मुल्क के गद्दार कौन है? जब भी हुकूमत पर सवाल उठता है, मौजू बदल कर हिंदू मुस्लिम का मसला भरा दिया जाता है, ताकि अवाम असल सवाल पूछना छोड़ दें। जो असल सवाल रात डिबेट में आया कि अजान बंद करने से या मस्जिद गिराने से या राम मंदिर बनाने से मुझे एक गरीब को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, तो ज़रूर ढा दो। ऐसा तो होता नहीं है।
मोदी हुकूमत खुद को कौम परस्त कहती है, लेकिन कौम परस्ती का मतलब सिर्फ एक मजहब या एक नज़रिया नहीं होता, बल्कि बल्कि कौम परस्ती ये होती है कि तमाम अक़वाम का नज़रिया सामने रखते हैं। तमाम अक़वाम का जो कौम परस्ती है वो रखी जाती है सामने। किसी को गिरफ़्तार करने से पहले जुर्म नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की या नहीं। और जमहूरियत में ताकत अवाम के पास होती है, लेकिन आज ताकत चंद बड़े सरमायादारों और सियासी लीडरों के हाथ होती है। 257 मुल्क हैं, 257 कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये अपने मुल्क की अवाम को ऐसे निचोड़ रहे हैं जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है धोने के बाद। ये अवाम की गर्दन निचोड़ रहे हैं, गर्दन। ये बात ज़हन में रखिएगा आप। और इसमें कुछ ममालिक को हम निकाल सकते हैं, चाइना को हम निकाल सकते हैं, और इसी तरह हम गल्फ़ कंट्रीज़ को निकाल सकते हैं। चाइना को इसलिए निकाल सकते हैं कि वो सबसे बड़ा ताजिर है, उसके पास पैसा है, अवाम को फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़ देता है। गल्फ़ वालों के पास पेट्रोल है और वो अपने अवाम को गल्फ़ सब्सिडीज़ देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो मेरे भाई मज़े तो फिर वहीं हैं। और इसके बरक्स इंडिया है। इंडिया में ये चल रहा है कि इंडिया का मतलब क्या, जान बजा के भाग जा। अब आपके ऊपर टैरिफ, टैक्सेस, आपके पेट्रोल महंगा, आपकी गैसेस महंगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी, आपके किराए, आपके रियल स्टेट, आपके रोड्स, टूल प्लाजा टैक्सेस, आपकी गाड़ियाँ, आपके फलां फलां, सब कुछ को इंटरनेट, सब कुछ का बेड़ा गर्क करके अवाम को नीचे, यानी डूबते के सर पे हाथ रखना, और डूब और डूब और डूब। अवाम बर्दाश्त करती है। वो बेलचे वाला सारा दिन बेलचा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, शाम को एक बिस्किट का पैकेट अपने बच्चों के लिए लेता है, 10 रुपए टैक्स दे के जाता है वो। हाय हाय हाय, क्या बनेगा। तो वाकई ये मुल्क के गद्दार हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।